الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان کی 14 تاریخ ہے اور یہ 14 تاریخ گزرنے کے بعد وہ رات آئے گی، یعنی شعبان کی 15ویں رات کی تاریخ آئے گی، جس کو آج سبھی حضرات یاد کرتے ہیں۔ ایمان والے مسلمان شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس شب برات میں ایک ایمان والا، ایک مسلمان، نبی علیہ السلام کا امتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ ہونے کے ناطے ایک ایمان والا کیا کرنا چاہے، کیا اعمال کرنے چاہے۔ شب برات کے متعلق حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن میں شب برات کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، مختلف کتابوں میں مختلف روایات ہیں جن میں شب برات کے متعلق شب برات کی فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ شب برات کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے گی تو آپ اس میں یہ عمل کرو۔ ایک تو فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات میں آپ قیام کرو۔ تو قیام جب ایک انسان کرے گا، چاہے وہ اس میں نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں پر معافی مانگے، جو بھی انسان اس رات میں ان اعمال کے قبیل سے کرے گا تو کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا ہے وقوموا لیلہا، یعنی آپ اس رات کو عبادات میں گزارو۔ وصوموا یومہا، اور جب شعبان کی 15ویں تاریخ آئے گی تو آپ اس میں روزہ رکھو۔ فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، کہ شعبان کی 15ویں تاریخ جب آتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، یعنی اسلامی اعتبار سے سورج غروب ہونے کے بعد جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور جب لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت بندوں کی طرف ایک خاص رحمت، بندوں کی طرف ایک خاص توجہات فرماتے ہیں اور اپنے بندے کو اعلان کرتے ہیں۔ اعلان کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی تم میں سے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، فاغفر له، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ گویا کہ ایک شخص کو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اتنی ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور ہمارے گناہ اتنے ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں ہے، تو لہٰذا ایک شخص کو اس رات میں بہت بڑا موقع ملا ہے اپنے گناہوں کو مغفرت معاف کرنے کا ذریعہ۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہے ایک بندے کو، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں وہیں سے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی تم میں سے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور آگے فرماتے ہیں الا مسترزقن، کہ ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جو رزق کا طالب ہو، فارزقہ، تو میں اس کو رزق دے دوں گا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے بہت سارے ایسے، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے ہمارے بھائی ہوں، چاہے باقی دیگر احباب ہوں، جو ہر اعتبار سے چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا اس کے علاوہ ہو، ہر ایک کو یہ مشکلات ہے کہ روزی کا بہت بڑا سامنا اس وقت کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کے دربار میں آج رات کو جائیں گے،
अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर मांगेंगे कि अल्लाह हम तेरे सिवा किसी से रिज्क नहीं मांग सकते हैं, ए अल्लाह तो हमें अपने खजाने से रोजी अता फरमाए। इसी तरीके से फरमाया अला मुबतलन फउआफियहु, कि है तुम में से कोई ऐसा शख्स जो शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला हो, किसी गम में मुब्तला हो, किसी परेशानी में मुब्तला हो, मैं उसको आफियत बख्शूंगा। और इसी तरीके से फरमाया ये निदा कब तक होती रहती है? फरमाया ये निदा सुबह सादिक तक होती रहती है। अला कदा, यानी इसी तरीके से हर वो इंसान जिसको जैसे भी हालात हों, जिसको जैसे भी कोई परेशानी हो, किसी को रिज्क की परेशानी हो, किसी को बीमारी की परेशानी हो, किसी को और कोई वजह हो, तो फरमाया वो मुझसे मांगता रहेगा, मैं उसे देता रहूंगा। हत्ता यतलउल फज्र, फरमाया यहाँ तक कि सुबह सादिक तक ये ऐलान होता रहता है। और इसी तरीके से इसके अलावा भी बाकी रिवायत हैं। ये जो रिवायत है ये मिशकात की रिवायत है और हदीस कुदसी भी है ये। इसी तरीके से और एक रिवायत में है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिस हदीस के रावी हैं, वो फरमाती हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस रात को आसमान दुनिया पर आते हैं, और जब आते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इला समाई दुनिया, कि अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर अपने शायान शान के मुताबिक जलवागर होते हैं। फयगफिरु लिअक्सर मिन अददि शारी गनम कल्बिन, और फरमाया कि बनु कल्ब की जो बकरियां हैं उन बकरियों के जितने बाल हैं, फरमाया उन बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला इस रात में अपने गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, अपने बंदों को माफ़ फरमा देते हैं। ये इन बकरियों का तज़किरा, इस कबीले की बकरियों का तज़किरा इसलिए किया कि उनकी बहुत सारी बकरियां थी। मुराद ये है, मतलब ये है कि ला तादाद अल्लाह तबारक व ताला आज की रात में बहुत सारे लोगों को माफ़ कर देते हैं, उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, नारे जहन्नम से आज़ादी बख्शते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं। ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी के अंदर है। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की और एक रिवायत है जिसमें फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस रात में मांगने वालों की जो शख्स भी अल्लाह ताला से मांगेगा अल्लाह ताला उसको दे देते हैं। तो जो इंसान आज की रात में अल्लाह ताला से जो कुछ मांगेगा अल्लाह ताला उनको आज वो दे देते हैं। ये रिवायत जो है बुखारी की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यंज़िलु रब्बना तबारक व तआला, कि अल्लाह तबारक व ताला इस रात में कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया, फरमाया कि ऊपर वाली रिवायत में यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में फरमाया कि सिर्फ इस रात में यानी शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया में तशरीफ लाते हैं। लेकिन इस बुखारी की रिवायत जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला हर रात में आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमाते हैं। और किस वक्त फरमाते हैं? हीना यबका सुलुसुल लैल आखिर, फरमाया जब रात का तिहाई हिस्सा होता है, यानी जिसको हम तहज्जुद का वक्त कहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त आसमान दुनिया पर आते हैं। तो गोया कि सिर्फ शाबान की 15वीं तारीख को ये अल्लाह तबारक व ताला का आसमान दुनिया पर तशरीफ लाना ये सिर्फ 15 शाबान को नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा भी इस रिवायत के मुताबिक कि अल्लाह तबारक व ताला रात के आखिरी तिहाई हिस्से में तशरीफ फरमाते हैं। और उसके बाद कहते हैं यक़ूलु मन यदऊनी फ़अस्तजीब लहू, कि है कोई जो मुझसे सवाल करेगा मैं उससे, जो मुझसे मांगेगा, जो मुझे मांगेगा मुझसे सवाल करेगा मैं उसको इजाबत बख्शूंगा,
यानी मैं उसकी दुआ को, उसके मांगने को कबूल फरमाऊंगा। आगे फरमाते हैं मैं यसअलुनी फऊतियाहु, कि जो कोई मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। मैं यस्तगफिरुनी फअगफिर लहू, जो शख्स मुझे मगफिरत मांगेगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, फ़अग़फ़िर लहू, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। ये बुखारी की रिवायत है। लेकिन कुछ अशख़ास ऐसे हैं जिनको इस रात में भी नहीं बख्शा जाता है। रिवायात मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रिवायात हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को बयान किया गया है कि इस रात में कौन वो अशख़ास हैं जिनको अल्लाह, बदनसीब इंसान है कि जिनको अल्लाह ताला इस रात में यानी 15वीं शाबान की रात में भी माफ़ नहीं करते हैं, यानी अल्लाह की मगफिरत से आज भी वो महरूम होते हैं। तो फरमाया रिवायात में आया है, किसी रिवायत में एक शख्स का तज़किरा है, किसी में 2 का तज़किरा है, किसी में 3 का तज़किरा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अशख़ास का तज़किरा आया है कि अल्लाह ताला इस रात में किन किन की माफ़ी नहीं बख्शते हैं। फरमाया कि कुछ रिवायत में आया है अल्लाह तबारक व तआला जिनको माफ़ नहीं करते हैं, जैसे हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में आसमान दुनिया पर तशरीफ़ फरमाते हैं। फ़यग़फ़िरु फ़ीहा लिकुल्लि बशरिन, फरमाया इस रात में हर इंसान को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला हर शख्स की बख्शिश फरमाते हैं। लेकिन कुछ वो हैं जिनको नहीं फरमाते हैं। मा खला काफिरन औ रजुलन फी कल्बिही शहनाउ, सिवाय 2 अशख़ास इस रिवायत में आया है कि जिनको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते हैं। एक तो फरमाया वो जो काफिर होगा, और दूसरा फरमाया वो कि जिस शख्स के दिल में बुग़्ज़ होगा। तो गोया कि बुग़्ज़ जो है, अदावत है, कीना है, ये शख्स ऐसा है कि जिसको इस रात में भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाते हैं। ये रिवायत, और इसी रिवायत के दूसरी रिवायत में है, यानी और एक जुमला है, वह फरमाया इल्ला रजुलन मुशरिकन, गोया कि सबों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन जो मुशरिक होगा अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं फरमाते हैं। और इसमें और भी है, यानी वो शख्स औ फी कल्बिही शहना, यानी जिस शख्स के दिल में बुग़्ज़ होगा अल्लाह ताला उसे भी माफ़ नहीं फरमाते हैं। इसी तरीके से और एक रिवायत है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। इस रिवायत में फरमाते हैं अल्लाह ताला सबों को माफ़ फरमाते हैं, इल्लल इस्नाइन, सिवाय 2 शख्सों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते हैं। फरमाया एक वो जो कातिल होगा, यानी किसी को नाहक कत्ल करेगा, और एक वो जो मुशरिक होगा, यानी शिर्क करने वाला होगा, अल्लाह ताला उसे भी नहीं माफ़ फरमाते हैं। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और एक रिवायत है, जो रिवायत शुबुल ईमान लिल बैहक़ी में आई है। वो फरमाते हैं उसमें भी है अल्लाह ताला सबों को माफ़ फरमा देते हैं। फ़यग़फ़िरु लिकुल्लि मुमिनिन, अल्लाह ताला तमाम मोमिनों को माफ़ फरमा देते हैं। इल्लल आक़, कि सिवाय उस शख्स को जो वालिदैन का नाफरमान है, कि जो वालिदैन का नाफरमान होगा, अल्लाह ताला आज इस रात में यानी 15वीं शाबान की रात में उस शख्स को माफ़ नहीं फरमाते हैं। और इसी तरीके से हज़रत अबू सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, जो रिवायत शुबुल ईमान में है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज इस रात में सबों को माफ़ फरमा देते हैं। अपनी ख़ास तजल्ली के एतबार से आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं, फिर अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों को मगफिरत फरमा देते हैं। लेकिन काफिर को तब तक उसे माफ़ नहीं करेंगे जब तक वो अपने कुफ्र से तौबा करके ईमान कबूल न करे। यानी ईमान जब कबूल करेगा, तौबा कुफ्र से तौबा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को फिर माफ़ फरमा देंगे। इसी तरीके से फरमाया
कि कीना वारों को, यानी जिनके दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, उनको माफ़ नहीं फरमाते हैं। इस वजह से कि जब तक वो अपने उस कीने से बाज ना आ जाए, उस कीने को छोड़ देंगे, उस अदावत को छोड़ देंगे, बुग़्ज़ को छोड़ देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी माफ़ फरमा देंगे। इसी तरीके से और भी बाकी रिवायात हैं, यानी जिनमें मुख्तलिफ अशखास को ये बयान, जिनमें वो अशखासों का तबसरा है, तज़किरा है कि जिनको अल्लाह ताला इस रात में माफ़ नहीं फरमा देते हैं। वो कुल मिलाकर के मुख्तलिफ रिवायात में जो आया है वो 11 हैं जिनको अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते हैं। 10 हैं, कहीं फरमाया 10 हैं जिनको माफ़ नहीं फरमाते हैं। जैसे नंबर 1 फरमाया मुशरिक, यानी शिर्क करने वाला, अल्लाह ताला उससे भी नहीं माफ़ फरमाते हैं। कीना रखने वाला, अल्लाह ताला उससे भी माफ़ नहीं फरमाते हैं। कातिल, यानी किसी को नाहक कत्ल करने वाला, उसे भी माफ़ नहीं फरमाते हैं। ये इन 3 अशखास का मिशकात की रिवायात है, मिशकात में इनका तबसरा आया है। इसी तरीके से नंबर 4 कतई रहमी करने वाला, यानी रिश्ते को तोड़ने वाला, रिश्ते नाते को ख़त्म करने वाला, और वालिदैन का नाफरमान, शराब का आदी, जिना का आदी, टखनों से नीचे पाजामा लटकाने वाला, जो अक्सर आज हमारे जवानों में ये चीज़ पाई जाती है। खुदकशी करने वाला, गैब की बातें बतलाने वाला, यानी वो जो नुजूमी होता है, गैब की बातें बताता है, भाई तुम्हारे मुकद्दर में ये है, कल ये होने वाला है, इसलिए कि इन बातों का इल्म जो है वो अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा वो कोई नहीं जानता है कि कल किसके साथ क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता है। फरमाया आज रात, यानी 15वीं शाबान की रात में इस शख्स को भी माफ़ नहीं किया जाएगा जो गैब की बातें बतलाने वाला होगा। नीज़ काहिन और नुजूमी, यानी नुजूमी जो होते हैं, वो जो खबरें बोलने वाले होते हैं, अल्लाह ताला इनको भी माफ़ नहीं फरमाते हैं। फरमाते हैं ये जो रिवायात हैं, जिन शख्स का तज़किरा आया है, ये अत-तरगीब व तरहीब के अंदर इनका तज़किरा आया है कि अल्लाह ताला इनको माफ़ नहीं करते हैं। बहरहाल जब ये रात हमें नसीब हो जाएगी तो हमें इस रात में आमाल करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत ये है कि अपने वक्त को ज़ाया न करेंगे और वक्त को बर्बाद न करने के बजाय हम इस रात में इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह से रोज़गार तलब करेंगे, ईमान की दौलत तलब करेंगे, नवाफिल की कसरत करेंगे, ज़िक्र अज़कार की कसरत करेंगे, दुरूद पाक की कसरत करेंगे, और इसी तरीके से तिलावत की कसरत करेंगे और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे। जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में आया है, वक़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा, कि रात में क़ियाम करो और जब फिर दूसरे दिन 15वीं शाबान आएगी तो उस दिन रोज़ा रखना चाहे, इसलिए कि रिवायत में आया है भाई रोज़ा रखो, लिहाजा इन चीज़ों पर हमें अमल करना चाहिए। इसी तरीके से हज़रत सहाबा किबार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इस शाबान की 15वीं रात में एक दुआ किया करते थे तमाम सहाबा, लेकिन बिलखुसूस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रात में एक खुसूसी दुआ किया करते थे, जिस दुआ को साहिब मिरकात, यानी जो मिशकात की शरह है, उन्होंने उसमें दर्ज किया है। फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दुआ का एहतिमाम किया करते थे वो ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतबतना अश्किया फमहुहु, कि अल्लाह अगर आपने हमारे हक में, हमारे मुकद्दर में हमको बुरा लिखा है, फमहुहु, आप उसे मिटा दीजिए। वक्तुब ना सौदा, और हमको नेक लिख दीजिए, हमको नेक बख्त लिख दीजिए। व इन कुन्त कतबतना सौदा फअस्बितना, अगर आपने हमको नेक ही लिखा है अल्लाह तो हमें इस पर कायम और दायम रखना। और आगे फरमाते हैं फ़इन्नका तम्हु मा तशाउ व तुस्बितु, आगे फरमाते हैं बिला शुबा ए अल्लाह जिसे तू चाहे मिटा सकता है
اور जिसको चाह सकते जिसे आप चाहेंगे आप उसको साबित रख सकते हैं। और इसलिए कि ए बारी ताला आप ही के हाथ में है, आप ही के कुदरत में है लोहे महफूज, यानी हमारी लोहे महफूज, यानी आप उसमें जैसा करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। इसलिए कि लोहे महफूज में जो हमारी मुकद्दर की किताब है वो आपकी कुदरत में है, आप जैसा चाहेंगे कर सकते हैं। हजरत सहाबा किबार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इस दुआ की कसरत किया करते थे। लिहाजा आज की जो आने वाली रात यानी शाबान की 15वीं रात जो आने वाली है, हम सब को चाहे कि हम इसमें अमल करें और वो अमल करें जो शरीयत में काबिल कबूल हों, जो दीन में काबिल कबूल हों, जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में काबिल कबूल हों। हम वो अमल कतन न करें जिनमें शरीयत के अंदर कोई हैसियत ना हो, जिनके करने पर किसी इंसान को कोई अजर का वादा ना हो। हमें उन तमाम कामों से बचना चाहिए, इसलिए कि हमारा दीन एक ऐसा दीन है जिस दीन में काम को भी बताया है और काम के तरीके को भी बताया है। तो गोया कि अगर हम इस दीन पर ऐसे ही अमल करेंगे जिस तरीके से हमको शरीयत ने बताया है, कुरान ने बताया है, हदीस ने बताया है, सहाबा की अमल ने बताया है, हम भी अपने काम को उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जब हम इंशाल्लाह करेंगे तो हमें उम्मीद है इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला हमको इस दुनिया में भी हमें नेक आमालों का बदला अता फरमाएंगे और आखिरत के अंदर भी नेक आमालों का बदला अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।